का SECB रेगुलेटर है स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। अब स्टॉक एक्सचेंज कराची में है, रेगुलेटर इस्लामाबाद में बैठा है। जो SECB का रेगुलेटर वहां बैठा है, उसने कभी जिंदगी में शेयर में डील नहीं किया, उसे पता नहीं शेयर होता क्या है। सबसे बड़ा राइट ह्यूमन राइट का है एजुकेशन, और हमने लिखा हुआ है कि हम आइन में प्राइमरी तालीम हर आदमी को देंगे। आज 3 करोड़ आदमी, 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता। हमारे किसी जुमे के खुतबे का हिस्सा है ये कि 3 करोड़ बच्चा आज मदरसे में नहीं जाता, आज स्कूल में नहीं जाता। दूसरा आपने ह्यूमन राइट ये दिया है कि हर आदमी को लॉ एंड ऑर्डर की सेफ्टी होगी, उसकी जान और माल सेफ होगा। क्या मैं मौलवियों से सेफ हूं? मुझे कोई मतलब नहीं है वो घर जाके किसकी इबादत करता है, बुत की इबादत करता है या नमाज पढ़ता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। माशरे को कोई जरूरत नहीं है कि वो क्या करता है। माशरे को जरूरत है कि माशरे के लिए क्या करता है। मैंने खरीदी दुबई में, उसने मेरा 1 महीने किराया दे दिया, उसको मैं बाहर करूंगा 2 घंटे में बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान में 25 साल लगेंगे। तो ये हमारा परसेप्शन है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है। कम से कम मुझसे नहीं कह सकते, इसलिए कि मैंने लोगों की एमनेस्टी भी फाइल की है, मैंने सबकी वेल्थ स्टेटमेंट भी देखी है, मुझे पता है। किसी अस्पताल में चले जाए आज कराची के, किसी अस्पताल में आपको नर्स नहीं मिलेगी जिसकी तनख्वाह 50,000 से कम हो, क्योंकि मुसलमान औरतें नर्स बनने के लिए तैयारी नहीं है। हज के तवाफ में औरत सेग्रीगेटेड है। The topic is a bit, it's a bit tricky, today's topic. So I'll try to stay within the parameters of the theme today, and I will try to establish a link between human rights abuses and their impact on the economy in Pakistan. Now, in some other economy, the impact might be different. For example, if it's a rich country, a developed country, they might be getting away with human rights abuses and still it might not affect their economy. But in Pakistan, human rights abuses are affecting the economy and also other developing countries. Their economies are also getting affected by the human rights abuses. For example, before I talk about human rights abuses, when the Second World War ended, the victorious powers, they met and they established the international financial institutions, the World Bank and the IMF in Bretton Woods. And also, most of the colonial powers that had to withdraw after the Second World War, these colonial powers, these victorious powers were also the colonial powers. For example, the European Union, a lot of these countries, whether it is UK or France or Germany or Spain, they all had colonies. So when they were leaving, they left these colonies in such a way that they tried to make one fight against the other. They left intractable disputes like the Kashmir dispute, like the Palestine dispute, because all these colonial powers were armament-producing countries, and they wanted that when they leave, these regions and these countries should continue to fight with each other. So this is the colonial order that we inherited after the Second World War. And this is how what happened was that every time when there was a recession in the Western countries, then every time there was a recession, a conflict used to start in the Third World. For example, either the Kashmir dispute or Palestine or whatever.
And when these regions and countries were fighting with one another, they were purchasing armaments from the rich countries. So this helped to increase the gross domestic product of rich countries, but it was sucking the third world countries of their resources, and they were spending all their resources on purchase of armaments. And that is why we had the debt distress, because a lot of countries, they were spending all their money on acquiring armaments. And that is why they faced the debt distress. I have done some work on debt distress also. So this debt distress caused economic decline because a lot of our resources were going out to purchase armaments. And this caused economic decline in Pakistan and other third world countries which were forced to buy arms because the colonial powers had left them with no choice. They had left very intractable problems. So those conflicts meant if we were fighting with one another, we had to purchase arms. And when we purchased arms, it caused debt distress. And that debt distress led to increase in poverty. And it led to increase in the debt, it caused the debt crisis. And the debt crisis, you know, and then we had to turn to the IMF. And when we turned to the IMF and the World Bank, what happened? For example, if you look at what Pakistan has been doing since the 1990s, particularly 1988, we've been constantly borrowing from the IMF. And because we are borrowing constantly from the IMF is dictating our policies. And there are two reasons why IMF borrowing so continuously from the IMF since 1988, why they are creating so much problem, economic decline, because of their conditionalities and because of the fact that a very large percentage of our resources are going towards debt servicing. So both these are causing economic decline in Pakistan. And this economic decline, for example, if you look at the IMF policies, particularly when you borrow from them, they say that you should try to increase your exports. And they say that the best way to increase your exports is through devaluation. Pakistan has been devaluing its currency for the last 30 years, but we've not been able to increase our exports. But the only thing that this devaluation has done is that it has increased our import prices. And because of this increase in import prices, there is a lot of devaluation in Pakistan. Sorry, a lot of inflation. And then the State Bank, along with the IMF, tell the government of Pakistan that now you have to increase your interest rates. Although I have pointed it out so many times that inflation in Pakistan is not because of demand pull factors. Our inflation is because of cost push factors. Because we devalue, so import prices increase. When import prices increase, our cost of doing business goes up. But we are made to increase our interest rates. And that increase in interest rates causes further increase in prices and further worsens the recession in the economy. That is one, these are the two major conditionalities of the IMF. And then, because we borrowed from the IMF, our interest rate is so high that has increased our debt, particularly both the principal and the debt, interest payments. And the size of the debt increases both because we are free floating the rupee. The rupee is under free float, and that increases the size of the principal, the size of the principal also, principal debt. And because of increase in the interest rate, the interest payments also increase tremendously. So that is causing the economic decline. So that is one reason. And so this is how I'm trying to tell you, relate this, abuses of human rights, starting from political abuses, then going on to economic conditionalities, and that is causing a massive poverty level in Pakistan.
And according to when we were borrowing from the IMF in the 1990s, at that time, the Asian Development Bank said that Pakistan's poverty level was 50% overall in the country, and in the interior of Sindh, it was 85%. So you can see the link from these policies to economic decline. And also, and now obviously, if you look at the world order today, it is even worse. It is getting worse every day. So every time now, the new world order that is being ushered in, you can see that it will lead to further economic decline and further fragmentation of third world countries. Second speaker of the day, Mr. Shahbaz Zaidi Saab, to please share his thoughts on this topic. ये हमारे आइन के आर्टिकल में दिया हुआ है कि ह्यूमन राइट पाकिस्तान में सबसे बड़ा राइट ह्यूमन राइट का है एजुकेशन, और हमने लिखा हुआ है कि हम आइन में प्राइमरी तालीम हर आदमी को देंगे। आज 3 करोड़ आदमी, 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता। ये कितने हमारे किस डिस्कशन का हिस्सा है? हमारे किसी जुमे खुतबे का हिस्सा है ये कि 3 करोड़ बच्चा आज मदरसे में नहीं जाता, आज स्कूल में नहीं जाता। ये पहला ह्यूमन राइट है जो कि आपने आइन के आर्टिकल के तहत दिया है। दूसरा आपने ह्यूमन राइट ये दिया है कि हर आदमी को लॉ एंड ऑर्डर की सेफ्टी होगी, उसकी जान और माल सेफ होगा। क्या पाकिस्तान में आज लोगों का जानो माल सेफ है? दूसरी बात, आगे चले, क्या ह्यूमन राइट में आज मुझे ये हक हासिल है कि मैं वो बात कर सकूं जो मैं चाहता हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच? क्या मेरे पास फ्रीडम ऑफ राइटिंग है? क्या मैं मौलवियों से सेफ हूं? ये वो ह्यूमन राइट्स हैं जो किसी माशरे में को तरक्की देते हैं। मैं आपको यहाँ एक थोड़ी सी एक और बात तारीख के हवाले से कहता हूँ। आज न्यूयॉर्क जो है वो एक तरक्की, उसमें हर बच्चा, आप कराची में हर बच्चे को पकड़े, उसे कहे ये वीजा तुम्हारा कराची का है और ये वीजा न्यूयॉर्क का है, तुम कहाँ रहना पसंद करोगे? वो कहेगा न्यूयॉर्क में। तो वो क्यों कहता है न्यूयॉर्क में? क्योंकि न्यूयॉर्क में जब आप जाएंगे वहां आपको इंडियन भी मिलेगा, आपको पाकिस्तानी भी मिलेगा, क्रिश्चियन भी मिलेगा, हिंदू भी मिलेगा, ज्यू भी मिलेगा, आपको हर मजहब का आदमी मिल जाएगा। ठीक है? जब तक आप माशरे को कॉस्मोपॉलिटन नहीं बनाएंगे, माशरा तरक्की नहीं कर सकता। और आपको ये तारीख का वाकया मैं आज बता देता हूं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आकाए नामदार जिंदा थे तो माशरा मदीने का कॉस्मोपॉलिटन था। उसमें बिलाल हबशी भी थे, सलमान फारसी भी थे, सुहैब रूमी भी थे और सारे मसलकों के लोग रहा करते थे। जिस दिन आपका इंतकाल हुआ उस दिन ये ऐलान हुआ कि तमाम गैर मुल्की लोग इस शहर को छोड़ दें। ये तारीख है, किसी को तकलीफ है तो जाके पढ़ ले। जिस दिन आपने कॉस्मोपॉलिटन बादशाह खत्म कर दिया, ह्यूमन राइट खत्म हो गया। हर माशरे में ह्यूमन राइट उस वक्त आएगा जब वहां हिंदू भी रहेगा, क्रिश्चियन भी रहेगा, पारसी भी रहेगा, अहमदी भी रहेगा, शिया भी रहेगा, बरेली भी रहेगा। ह्यूमन राइट का मतलब ये होता है कि एक माशरा कॉस्मोपॉलिटन है, वो अच्छा जब माशरे में ह्यूमन राइट होगा और वहां टैलेंट आएगा तो खुद ब खुद इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। अमेरिका में जितना भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो कौन लोग हैं? आइंस्टाइन कहां से आया था? ट्रम्प की फैमिली कहां से आई थी? क्लिंटन की फैमिली कहां से आई थी? ओपेनहाइमर की फैमिली कहां से आई थी? जो आज हार्वर्ड येल में पढ़ा रहे हैं वो कहां से आए थे? वो उन माशरों से आए थे जहां पे ह्यूमन राइट नहीं था। वो नाजी से भाग कर आए थे, वो अपने मजहबी लोगों से भाग कर आए थे और उन्होंने जाकर एक बादशाह क्रिएट कर दिया जिस बादशाह ने आज तरक्की कर दी। तो ये बात हमें रियलाइज करनी चाहिए कि जब तक आप पाकिस्तान में ह्यूमन राइट के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, आप कभी भी टैलेंट को रिटेन नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, इंसान का जो दुनिया किसी माशरे की तरक्की की बुनियाद टैलेंट का रिटेंशन है कि वो बंदा जो उसके पास टैलेंट है, जिसके पास दिमाग है, वो काफिर हो सकता है, वो इथियस्ट हो सकता है, वो मजूसी हो सकता है, मगर उसके पास टैलेंट है। मुझे कोई मतलब नहीं है वो घर जाके किसकी इबादत करता है, बुत की इबादत करता है या नमाज पढ़ता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है।
मास्टर को कोई जरूरत नहीं है कि वो क्या करता है, मास्टर को जरूरत है कि मास्टर के लिए क्या करता है, उसका नमाजें पढ़ ले, मुझे उससे क्या करना है। तो क्वेश्चन ये है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस का ताल्लुक ह्यूमन टैलेंट की रिटेंशन से है कि आप ह्यूमन टैलेंट को रिटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप ह्यूमन टैलेंट को रिटेन कर सकते हैं तो आपका इकोनॉमिक सर्वाइवल है, अगर आप इकोनॉमिक टैलेंट को रिटेन नहीं कर सकते तो आपका इकोनॉमिक डाउटफॉल है। आप आज इंडिया को देखते हैं कि इंडिया तरक्की याफ्ता है बिकॉज उसने ह्यूमन टैलेंट को रिटेन करने की सलाहियत हासिल कर ली है उन्होंने हासिल। अब आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। आज 20 बड़ी अमेरिकन कंपनीज जो कि दुनिया में टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनी है, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव इंडियंस हैं। तो मेरा कहने का मकसद है, जब आप ह्यूमन राइट अब्यूज का मतलब यह है कि मैंने कहा ना कि एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, रूल ऑफ लॉ। मैं मिसाल एक और देता हूं आपको। आज पाकिस्तान में आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ठीक है, आप प्रॉपर्टी किराए पे दे दें, इसका मतलब है कभी जिंदगी में खाली नहीं होगी, खाली नहीं होगी ना। आपने मतलब एक बार प्रॉपर्टी किराए पे दे दी नाजिब साहब, तो उसका मतलब गई। इंग्लैंड में प्रॉपर्टी की वैल्यू क्यों अच्छी है, दुबई में प्रॉपर्टी की वैल्यू क्यों अच्छी है? इसलिए कि फोरक्लोजर लॉ बिल्कुल क्लियर है कि यार जिस दिन प्रॉपर्टी खत्म हुई, इंग्लैंड में कोई आधे मिनट भी नहीं रह सकता प्रॉपर्टी में। तो फोरक्लोजर लॉ इज डेवलपिंग द प्रॉपर्टी वैल्यू इन इंग्लैंड, इन दुबई ने प्रॉपर्टी लॉ में क्यों तरक्की कर ली? बिकॉज वहां एब्यूज ऑफ लॉ नहीं है, एब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट नहीं है। प्रॉपर्टी मैंने खरीदी दुबई में, उसने मेरा 1 महीने किराया दे दिया, उसको मैं बाहर करूंगा 2 घंटे में बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान में 25 साल लगेंगे। तो एब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट का ताल्लुक इकोनॉमिक्स के साथ बड़ा डायरेक्ट होता है। तो ये हमारा परसेप्शन है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है। कम से कम आप मुझसे नहीं कह सकते, इसलिए कि मैंने लोगों की एमनेस्टी भी फाइल की है, मैंने सबकी वेल्थ स्टेटमेंट भी देखी है, मुझे पता है कि क्या चीज है, कौन कितने पानी में है, ठीक है ना। तो ये हम जब ह्यूमन राइट अब्यूज की बात करते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात करते हैं, तो मैंने जिस तरह कहा कि मैं क्योंकि पिछले 5 साल से पाकिस्तान की तारीख को डिटेल में पढ़ रहा हूं और उसके बेस पर मैंने अपनी एक बायोग्राफी लिखी है। मेरे एक दोस्त बैठे नहीं मकसद साहब, वो कह रहे हैं कि इसमें जो चैप्टर आपने पाकिस्तान पर लिखा है ये बायोग्राफी का हिस्सा नहीं है, ये आपकी अलग किताब होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं यार, मैं बायोग्राफी लिख देना चाहता हूं। तो मैंने उस पर लिखा है, मैं आपको सीरियसली ये कह रहा हूं कि मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक तरक्की हो कैसे सकती है। मैं आपको मिसाल देता हूं, फिर आपको बात समझ आ जाएगी। 1931 में कराची में एक कॉन्फ्रेंस हुई, 31, वो उस जगह पर कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर आज गुरु मंदिर है, ये पारसी कॉलोनी। इट वॉज द कॉन्फ्रेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। 22,000 आदमी आया पूरे इंडिया से, और द पर्पज ऑफ कॉन्फ्रेंस टू डिसाइड what will be the economic policy of Pakistan, of India after independence, और उसको कहते हैं कराची प्लान। आप जाएं गूगल पे डालें कराची प्लान, आपको मिल जाएगा। उसका नाम है कराची प्लान। वो पूरा एक डिटेल कोई 8 सफ़े का वो शेड्यूल है, आप पढ़ लें। मैंने पिछले 2 साल में और पिछले 1 महीने में लंदन बैठ के, मैं लंदन से आ रहा हूं अभी, बैठकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तारीख 1906 से लेकर 1947 तक पढ़ी। अगर 1 घंटे की मीटिंग भी इकोनॉमिक्स पे हुई हो तो मैं नाम बदल दूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। अगर किसी मीटिंग में कभी कोई मसला इकोनॉमिक्स का डिस्कस हुआ हो, मैं खुदकुशी कर लूंगा कि क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। तो हम आज 2025 में बैठकर यहां बैठ के ये फैसला कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क होगा। पहले अपनी जेनेसिस ऑफ क्रिएशन को तो सब सही करें, पहले अपनी जेनेसिस ऑफ क्रिएशन को सही करें। अब सवाल सिर्फ ये पैदा होता है, जो सवाल है अभी, जो मेरा मैडम ने भी रेज किया, जो इनडायरेक्टली मैं भी रेज कर रहा हूं, इस रिगमरोल, इस ह्यूमन राइट के एब्यूज और डिप्रेशन और पाकिस्तान का जो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा बैरियर लगा हुआ है, इस बैरियर को
कौन तोड़ेगा और कैसे टूटेगा? ये सवाल ये है ना बेसिकली। हम सब एग्री करते हैं ना इस बात से, कोई डिसएग्रीमेंट तो नहीं है ना कि एक बैरियर लगा हुआ है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक डिप्रेशन में जा रहा है, यहां पे सीरियस ह्यूमन राइट अब्यूज हैं और ये गलत है, इसमें भी सबका एग्रीमेंट है, इसमें कोई आपस में हम सबका कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये भी एग्रीमेंट है सबका कि ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये गलत है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, the Pakistan, if the Pakistan wants to get rid of this barrier which is now ahead of us, हम इस बैरियर को क्रॉस करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम एक प्रॉस्परस कंट्री के तौर पर जिंदा रहें और इसमें हमारे पास सिर्फ एक एसेट है और वो एसेट है ह्यूमन रिसोर्सेज का, या रिसोर्सेज को नहीं कहें बल्कि ह्यूमन पॉपुलेशन का, आप उसको पॉपुलेशन कह लें कि एक पॉपुलेशन है मेरे पास, उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स आज भी हैं नालायकी के बावजूद। एक उसके बाद एट्रीब्यूट ये है कि नालायक से नालायक भी है ना, मगर उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, उसे पता है इसको गिलास बोलते हैं, इसको बॉटल बोलते हैं, उसकी जो बेसिक एजुकेशन है वो अंग्रेजी के साथ है। दूसरा वो जो हमारा जो बंदा है पाकिस्तानी, वो इंग्लिश एंग्लो सैक्सन लीगल सिस्टम से ट्यून्ड है, उसे पता है कि यार ये होता है, ये होता है, ये होता है। ये जो मेरा एक 10 करोड़ का ह्यूमन रिसोर्स है मेरे पास, तकरीबन 8 से 10 करोड़ का यंगस्टर है जिसकी उम्र 25 साल के करीब है, अगर मैं इसको प्रॉपर्ली टेम कर लूं तो कोई दुनिया की ताकत इस कंट्री के साथ डील नहीं कर सकती, क्योंकि ये इंडिया के बाद सबसे बड़ी ह्यूमन रिसोर्सेज की फोर्स है। इसको अगर आप प्रॉपर्ली टेम कर लेंगे तो आप अपने बैरियर को क्रॉस कर लेंगे। अब इसको टेम नहीं करने का, इसको टेम कौन नहीं करने दे रहा? दो लोग नहीं करने दे रहे। एक इसको टेम नहीं करने दे रहा फ्यूडल, जो सरकारी स्कूल चलाने नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि अगर सरकारी स्कूल में बच्चों ने पढ़ लिया तो मेरी फेडरलिज्म गई। दूसरा मौलवी जिसने उस बच्चे को टेररिस्ट बना दिया, वो बच्चे, उसके पास बच्चे हैं मगर उन बच्चों को वो अनएजुकेटेड बनाया जा रहा है। उन्होंने उस बच्चे को ट्रांसफर कर दिया उस जगह पर जिस जगह पर वो प्रोडक्टिव की जगह पर अनप्रोडक्टिव हो गया। लड़की को पर्दे में डाल दिया उन्होंने और लड़के को उन्होंने मौलवी बना के साइड पे कर दिया। सजेशन है एजुकेशन की, गवर्नमेंट एजुकेशन के बारे में, और वो आज के जमाने में कोई मुश्किल काम नहीं है। आज के जमाने में किसी जगह पर कैमरा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने अभी राजली शाह मुझे मिला था कहीं, मैंने कहा सर एक काम करें, आपके जितने गवर्नमेंट स्कूल है ना उसमें कैमरा लगा दें, और कराची में उस कैमरा से पता लग जाए कि गवर्नमेंट का सुबह क्लास हुई है या नहीं हुई है। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि एक टंडो बागो में जो स्कूल है वो सुबह चला या नहीं चला। अब आज के जमाने में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, टंडो बागो स्कूल में कैमरा लगाओ, मेरे स्क्रीन पे आ जाए कि हाँ टंडो बागो वाले स्कूल में आज क्लास हुई है या नहीं हुई है। अगर मैं ये टंडो बागो के स्कूल में कैमरा लगा गया और मैंने ये देहातों में कैमरे लगा दिए, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं मैं 3 साल में पाकिस्तान तब्दील कर दूंगा। आपने एक पैरेलल सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच इज कॉल्ड कैम्ब्रिज, उस कैमरे सिस्टम को के सर पे हाथ रख दिया और आपने मैट्रिकुलेशन को तबाह कर दिया। या तो आप सबको मुसलमान बनाएं या सबको काफिर बना दें। अब आपने कहा ये सारे ए ग्रेड हैं, ये कैम्ब्रिज के बच्चे हैं, और ये सारे बी ग्रेड हैं, ये मैट्रिक के बच्चे हैं। ये क्या बकवास है? एक करे ना। इंडिया में कैम्ब्रिज है? क्यों नहीं है? आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में कितनी फीस जाती है कैम्ब्रिज की, पता है आपको? आइडिया है? फिर ये है इकोनॉमिक्स, कितनी फीस कैम्ब्रिज के स्टूडेंट की जा रही है, आपको आइडिया है? पाकिस्तान में टीचर भी मौजूद है, पढ़ने वाला भी मौजूद है, पढ़ाने वाला भी मौजूद है, आप उठा के कैश उठा के बाहर दे देते हैं। अच्छा वो भी बदमाशी है, पर्चे भी क्या बनते हैं? वो टीचर जो पर्चे बनाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो पाकिस्तानियों से बनवाते हैं। वो सिर्फ एक एजेंट हैं, उन्होंने पाकिस्तान से पर्चे बनाए, कैबिनेट के एग्जाम में डाले, यहां से फीस गई बाहर चली गई, और हम उल्लू के पट्टे की तरह वो करे जा रहे हैं। इंसान का पहला ह्यूमन राइट जो है ना,
वो फूड है। जी बिल्कुल। ठीक है, मैं एक किसी और प्रोग्राम में भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, बुराई से या अच्छाई से जैसे भी मुझे तकरीबन यकीन है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, मुझे तकरीबन यकीन है कि कराची शहर में आज कोई आदमी इसलिए नहीं मरता कि वो भूखा है। जी सही। तो चाहे मैं यूं करके पकड़ रहा हूं या यूं करके पकड़ रहा हूं, मैं किसी तरीके से वो ह्यूमन राइट पूरा कर रहा हूं, गलत या सही कर रहा हूं। जिस दिन ये ह्यूमन राइट भी मैंने अब्यूज करना शुरू किया ना, जिसको भूख कहते हैं, तो मेरे मुल्क में तबाही आ जाएगी। ठीक है ना, अभी मैं सिर्फ नीचे आते मैं यहां पर आ गया हूं कि आई एम ओनली फुलफिलिंग वन ह्यूमन राइट विच इज फूड बाय सैलानी, बाय जेडीसी, बाय दिस एंड दैट, और वो मेरा बंदे को रात को खाना मिल जाता है, वो भूख से बढ़ता नहीं है, वो ह्यूमन राइट पूरा हो जाता है। अब मगर जो उसके बाद ह्यूमन राइट है, एजुकेशन, शेल्टर, सिक्योरिटी, हेल्थ, वो सब नहीं मैं दे पा रहा हूं। मगर मैं आपसे सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ह्यूमन राइट मैं उसे कब दे सकूंगा? जब दे सकूंगा जब मैं डॉलर में कमाऊंगा। डॉलर में कमाने के लिए मुझे एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट करने के लिए मेरे पास कोई एक्सपोर्टेबल टेंजिबल गुड्स नहीं है, मुझे इनटेंजिबल ह्यूमन सर्विसेज एक्सपोर्ट करनी पड़ेंगी, जो मेरी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो मैं नहीं कर पा रहा हूं। वो मेरा पाकिस्तान का बुनियादी प्रॉब्लम है। आज सर्विसेज की एक्सपोर्ट इंडिया की 100 बिलियन डॉलर है, मेरी सर्विसेज की एक्सपोर्ट 1-2 बिलियन से आगे नहीं जाती। मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, नर्सें, टेक्नीशियन ये बनाकर एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे, जो मेरी पाकिस्तान को टीचर आगे लेके जाएंगे। अगर आप समझ रहे हैं कि फैक्ट्रियां लगेंगी या कोई चाइनीज इंडस्ट्री आएगी या कोई अमेरिकन आएगा, ये आपकी गलतफहमी है। आपको लोगों को पढ़ाकर और उनको बाहर नौकरियों पे भेजना है, ये आपकी। मैं आपको बताता हूं, चाइना को 10 लाख मॉन्टेसरी इंग्लिश टीचर चाहिए। चाइना को इस वक्त 10 लाख मॉन्टेसरी इंग्लिश टीचर चाहिए। पाकिस्तान ये प्रोड्यूस कर सकता है। आप किसी अस्पताल में चले जाएं, आज कराची के किसी अस्पताल में आपको नर्स नहीं मिलेगी जिसकी तनख्वाह 50,000 से कम हो, क्योंकि मुसलमान औरतें नर्स बनने के लिए तैयारी नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जो अब हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचनी पड़ेंगी, जिसके साथ माशरा सही होगा। अब मैं आपको अगली बात बताता हूं, आप कह रहे हैं गुर्बत है। नाज़िम हाजी साहब बैठे हैं, आई थिंक इनकी फैक्ट्री किसी जमाने में साइट में थी। इनसे पूछें कि 1970, 80s, इवन 90s तक कितनी लड़कियां साइट कोरंगी में काम करती थी। क्या आज के माशरे में कोई लड़की मिडिल क्लास की साइट कोरंगी लांडी जा सकती है? बताएं मुझे। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? कोई सिक्योरिटी है? जो मस्जिदों के, मदरसों के बाहर गुंडे बैठे हुए हैं, जो जिस तरह से उन्होंने इन एरियाज को कैप्चर किया है, क्या आपने 50% एम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं कर दी शहर में? आप बताएं, टेक्निक की कितनी लड़कियां हुआ करती थी, किस तरह लोगों लड़कियां काम करती थी रात को शिफ्ट। आज क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि मिडिल क्लास की कोई लड़की किसी शिफ्ट में जाके कोरंगी में काम करे? बताएं मुझे। कराची में 50 एकड़ की जमीन को एलोकेट करें, जिसमें आप आईटी के लिए इंडस्ट्रियल पार्क दें, आईटी पार्क से कहते हैं, तो फिर ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट होगा। आपने जब भी आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो आप बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की, कभी आपने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात नहीं की। ठीक है ना, आपने कभी ये नहीं कहा कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या होती है। ठीक है, आप उसके लिए कभी आपने एक इंच की जगह नहीं दी। आपने पाकिस्तान में ये बात सुनी है कि आप एनर्जी को कंजर्व करें? आपने सुना है कभी? आप बिजली बनाएं, बिजली बेचें, बिजली बेचें, बिजली सस्ती। आपने कभी सुना है कि बिजली कंजर्व करें? मैं वाहिद आदमी हूं जो बार बार ये कह रहा हूं कि दुकानें 6 बजे बंद करें। आपने बंद की? नहीं की ना। आप सोल्यूशन की बात करें ना। आज दुकानें 6 बजे क्यों नहीं बंद करते? बिजली की सेविंग क्यों नहीं करते? आप दुकानें 12 बजे क्यों खोलते हैं? इसलिए खोलते हैं आप कि आप फजर की नमाज पढ़ के सो जाते हैं, फिर आप 11 बजे उठ के निकल के आते हैं, घर की दुकान खोलते हैं। आपका मजहब और आपकी कारोबार क्लैश कर गया है। आप सुबह नहीं उठ सकते क्योंकि आप फजर के बाद सो जाते हैं और फिर उठते 11 बजे, 12 बजे आके दुकान खोलते हैं आप। तो मैं सोल्यूशन की बात करें ना। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा बिल किस चीज का है? एनर्जी का है ना।
आप मुझे एक ऐड दिखा दें कंजर्व एनर्जी का कि 6 बजे दुकानें बंद करो, सबने कोशिश करके देख ली ना, नवाज शरीफ ने भी कहा, मुराद अली शाह ने कहा, क्यों नहीं पाकिस्तान ने दुकानें बंद की? 6 बजे दुकान बंद करो, क्यों नहीं बंद करते 6 बजे दुकान? मुझे बताइए ना, सुबह 8 बजे क्यों? लंदन में आप रहे हैं, आप बताएं लंदन में किसने दुकान खुलती है और किसने हाई स्ट्रीट बंद होती है? वहां तो फ्लाइट एयरपोर्ट बंद रहता है, रात को बंद रहता है एयरपोर्ट। मुझे बताया ना कि हम एक तरफ हमारी ये लाइफ स्टाइल है, ये हमारे तरीके, फिर हम कहते हैं ह्यूमन राइट अब्यूज हो रहा है, डिप्रेशन हो रही है। तो यार ये तो होना ही है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है यार? एक और बात बताता हूं, मैं 1990s में इंडिया गया, तो इंडिया की सेमिनार, जैसे इकोनॉमिक के सेमिनार होते हैं, वो बार बार सारे बंदे सेमिनार में जो स्पीकर्स थे वो ये कहते थे कि हमारा एक ही प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन पॉपुलेशन, कि इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ रही है और हमारे पास बहुत ज़्यादा आबादी है, आबादी आबादी, इंडिया के गुर्बत गुर्बत गुर्बत। मैं 2005 या 7 में इंडिया गया, उन्होंने बोला हमारे पास एक ही एसेट है, आबादी। उन्होंने बोला हमारा एक ही एसेट है जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो होता है ना इंसान किसी सोसाइटी का, ये एसेट भी होता है और लायबिलिटी भी होती है। तो आप इस एसेट को अगर एसेट के तौर पे यूज कर ले, आज पाकिस्तान के पास कोई बड़ा एसेट नहीं है एक्सपोर्टेबल, सिवाय इंसानों के जो पढ़े लिखे लोग हैं, और सब अच्छे पढ़े लिखे, मैं ये कह रहा हूं, कम से कम उनको एक बेसिक आइडिया ऑफ एजुकेशन है कि तालीम क्या होती है। और आखिरी बात यह है कि ये नहीं हो सकता कि एक माशरे की 50% आबादी, क्योंकि औरतों में मुश्तमल है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से बाहर हो जाए। आप बिल्कुल, मैं फ्रैंकली पूछ रहा हूं आपसे, क्या इकोनॉमिक्स किसी भी माशरे की चल सकती है जब 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज टेकन आउट ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन? आप पूछे ना कि आपको अगर कोई ऐसे इमीडिएट काम करने हैं जिससे पाकिस्तान इमीडिएटली तरक्की की तरफ चला जाएगा, बिल्कुल लो हैंगिंग, इमीडिएटली आप प्रोविंसेस बना दें, इमीडिएटली आप अगले साल में पाकिस्तान में 4 की जगह पर कम से कम 8 बना दें, कम से कम 8। अच्छा, उसके बाद लो हैंगिंग फ्रूट, सेकंड लो हैंगिंग फ्रूट इसके 3 बड़े शहरों को इमीडिएटली मेट्रोपॉलिटन बना दें। तीसरा, दुकानें 6 बजे बंद कर दें, 5,000 का नोट बंद कर दें। आगे चलें, गोल्ड की इंपोर्ट अलाउ कर दें, स्मगलिंग बंद हो जाएगी। गोल्ड की इंपोर्ट अलाउ कर दें, गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो अलाउ कर दें, मतलब गोल्ड आज स्मगल होता है उसको अलाउ कर दें, गोल्ड स्मगल नहीं, ठीक है, ठीक है, गोल्ड की इंपोर्ट अलाउ कर दे। यूएई दुबई में जो बंदे यूएई में जो हैं, इसकी जो डबल टैक्स ट्रीटी है इसको कैंसिल कर दे। जो पाकिस्तानियों ने यूएई जाके रेजिडेंसी ली हुई है टैक्स की, इसको बंद कर दे, ठीक है। ये वो लो हैंगिंग फ्रूट है जो आप कल कर सकते हैं, तो आप कल कर सकते हैं, ठीक है। ये आप करेंगे, आपको रिजल्ट कल मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी वो रेगुलेटर हैं जिनका ताल्लुक फाइनेंशियल मैटर से है, जैसे एससीसीपी है, ओगरा है, नेपरा है, ये सारों के हेडक्वार्टर कराची ट्रांसफर कर दे, जैसे स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर है, जैसे एससीसीपी रेगुलेटर है स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। अब स्टॉक एक्सचेंज कराची में है, रेगुलेटर इस्लामाबाद में बैठा है, जो एससीबी का रेगुलेटर वहां बैठा है, उसने कभी जिंदगी में शेयर में डील ही नहीं किया, उसे पता ही नहीं शेयर होता क्या है, शेयर की ट्रांजेक्शन क्या होती है, कैसे होती है, कब होती है, उसे पता ही नहीं है। अब वो रेगुलेटर वहां बैठा है, कोई ब्यूरोक्रेट, अब वो लगा हुआ है, तो आपका जो फाइनेंस का और उसका जो फासला है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो फासला खत्म हो जाएगा। और अगला स्टेप, ये जो आपने लिखा हुआ है ना कि उर्दू कौमी जबान होगी, उसको बंद कर दे, अंग्रेजी को पहली क्लास से पढ़ाएं, गवर्नमेंट स्कूलों में अंग्रेजी पहली क्लास से पढ़ाएं। एक फैसला कर लें कि कैम्ब्रिज और मैट्रिकुलेशन का फर्क ताल्लुक क्या होगा। देखिए, कैम्ब्रिज और मैट्रिकुलेशन 2 क्लैशेस चल रहे हैं। आप एक क्लास क्रिएट कर रहे हो कि यार ये कैम्ब्रिज वाली क्लास है, ये मैट्रिक वाली क्लास है, ये तबकात आपने
बचपन से डाल दी है। आखिरी अगली चीज, इलेक्शन में जीतने के लिए जो फ्रांस में होता है कि आपको 50% का वोट लेना है। ये नहीं हो सकता कि 5 आदमी खड़े हो गए और जिसने 15% वोट लिया वो जीत गया। फ्रांस में ये होता है कि एटलीस्ट यू हैव टू गेट, इवन ईरान में भी शायद यही है कि इवन यू हैव टू गेट 50% ऑफ द मैंडेट। तो सर ये वो चीजें हैं जो आप कल कर सकते हैं। इंडिया को जब इंडिया आजाद हुआ था उस वक्त इंडिया में 7 प्रोविंस थे, 7। आज इंडिया में 23 प्रोविंस हैं। कितने? 23 या 24 है, ठीक है। और आप ये याद करें कि आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में शायद 17 जज हैं और इंडियन सुप्रीम कोर्ट में 13 जज हैं। उनके पास 36 हाई कोर्ट है हमारे पास 4 हाई कोर्ट है। उनकी सुप्रीम कोर्ट में 13 जज हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट में 17 जज है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। अच्छा, अगली बात, जजेस की अपॉइंटमेंट पब्लिक हियरिंग की बात करें। पब्लिक हियरिंग का मतलब यह है कि जज जब अपॉइंट हो, अमेरिका की तरह टीवी पर आ जाए, शब्बीर अली साहब यहां बैठे हो, पब्लिक सामने बैठी हो और मेरी अपॉइंटमेंट हो रही हो, सारी दुनिया देख रही हो कि मैं आ रहा हूं जज के लिए। आधे बंदे तो आएंगे ही नहीं, आधे बंदे तो अपीयर ही नहीं होंगे। आप गवर्नमेंट की सर्टेन पोस्ट, जिस तरह अमेरिका में होता है कि अगर मैं चेयरमैन अपॉइंट हो रहा हूं रिजर्व बैंक का, या मैं अपॉइंट हो रहा हूं जजेस अपॉइंट हो रहा हूं, या मैं बड़ी पोस्ट के लिए अपॉइंट हो रहा हूं, उसकी पब्लिक हियरिंग होती है और पब्लिक हियरिंग को रिले किया जाता है। आप पाकिस्तान में रिले करें, देखें, मैं देखता हूं कौन हमारी बाइक का लाल आता है, आप खड़ा करें, बिठाएं सामने मीडिया के और बिठा दें उसको, मैं देखता हूं कौन सा जज आके बैठता है। लाइव, हाँ लाइव नहीं, मैं कह रहा हूं आप अपॉइंटमेंट के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करें ना। आप ये कहें कि जज बनना है ना आपके, आ जाए, बैठ जाए आके सामने, और 5 सेनेटर सवाल कर रहे हो और पूरी पब्लिक देख रही हो पाकिस्तान की, बंदे का बोतल बन जाएगा 5 मिनट के अंदर। आखिरी बात, तमाम 4 व्हील ड्राइवर गाड़ियों की एंट्री बंद करें शहर के अंदर शाम को, सिर्फ लेमोजीन गाड़ी चलेगी। यार आप मुझे ईमानदारी से बताएं, ये 4 व्हील ड्राइव गाड़ी का कॉन्सेप्ट कब से आया? गाड़ियां शरीफ शहरों में गाड़ियां होती थी, मर्सिडीज होती थी पैसे वाले के पास, BMW होती है, वॉल्वो होती है, ये किसी की लैंड क्रूजर और रोवर, और ये गाड़ियां शहरों में चलने की गाड़ियां यार, ये बंदर रोड पे चलने वाली गाड़ी है। रोवर बंदर रोड में चलेगी, शायद इंफ्रास्ट्रक्चर में रोवर चलेगी। मर्सिडीज बैंड चलाएं, शौक में चलाएं, चलाएं आप शौक से, कौन मना कर रहा है आपको? ये बदमाशी, ये गुंडागर्दी, ये क्यों है? देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे माशरे में कि हम रियल इश्यूज को तो लेके बैठे ही नहीं ना। ये मेरे भाई साहब कह रहे हैं कि आप औरतों को तालीम दें मगर सेग्रीगेटेड थे। अब मैं पर्दा लगाने को तैयार हूं दरमियान में, बट मैं इनसे इसलिए पूछ रहा था, सिर्फ एक सवाल है मेरे भाई साहब से कि क्या हज के तवाफ में औरत सेग्रीगेटेड है?